Yes, tell me, Ria. So like I have been I mean I am a very gregarious person, but because of like final stress and all, I don't know, I've lost confidence. I feel like I've started doubting silly things, and like I'm not someone who's not I've always performed well consistently, like up until CA final. Mm-hmm. And now it's like first attempt I couldn't, my grandmom passed away two Okay. days before the exams. So that was really like scary. Like I was really up close to her and all. And then I got like hurt on my right hand. Mm-hmm. So then I couldn't um get like appear in the second attempt in May. So like two attempts got wasted like that. Okay. Because like my doctors and all, they told me that, don't Hmm. go for it, otherwise permanent injury ho jayega. Like Acha. Okay. because so then I appeared in December and Mm-hmm. I didn't clear. I missed exemptions in two subjects. SFM I got a pretty good score, and elective like I flunked in costing. I Okay. passed in all the other subjects except costing, and Mm-hmm. my FR score was really low, like which I was really shocked by. That Hmm. why how come I got such a low score in FR? Like I got in 40s. Okay. And then I was like I was very underconfident, so I ended up only giving one group like Hmm. right now. Which is And group? even now I gave group 2. Group 2. Okay. So even now I'm a bit like I'm not sure if I'll clear group 2 or not. Hmm. So I have started studying a bit for group 1. Like I've started studying for FR, Mm-hmm. but like I'm not able to focus. That consistency is not coming. So that's why I saw Hmm. uh, your community, your message. Yeah. So I decided, I was like, you said that you take 6 people and you counsel them throughout Yeah. uh, 3.5, 4 months span of time. So I was like, if I'll contact you, if, like the counseling helps me clear my exams. Like I'm approaching it from a very practical point of view. Like I have to clear in November, irrespective if I give both groups, one group, either of the group, I have to clear now. Like enough is enough. I can't take so much stress anymore. Okay. So that's why I just wanted counseling, and in the sense that I wanted someone who would. Most of my friends have cleared. Like Mm-hmm. some of them have gotten ranks and all also. Like Acha. my circle was really like smart individuals, and now I feel a bit inferior, so I don't really Okay. talk to them also. They keep calling me and they keep telling me that, Hmm. why aren't you talking to us? But it's just I don't know. So Okay. तो सबसे पहले तो जो आपने कहा कि you are not able to focus. So what kind हाँ, of thoughts are distracting you from studies? I don't know. I'm just not able to sit for like hours and hours, which I could earlier. Mm-hmm. Like I get distracted, as in I just wander off, which was never my case. Like I was a very like if I do something, I'll do it. Mm-hmm. So I just did start think. I don't think anything. I just Hmm. wander off in the sense, Which is I where? don't know. In which direction do you? Like I don't know. I'll go down. I'll go downstairs. I'll like Mm-hmm. go for a walk or something. Okay, so not I'll do mentally, everything. but physically you wander off. Okay. Yeah, like Mm-hmm. I'll just not. So I'm basically, not it able to feels sit like I don't want to be trapped. It feels like a trap sitting inside the in room. my So I just want room to get for like out. 2 years. Yeah. Got it. Makes sense. Alright. So सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा जो thought process है उसके ऊपर work करते हैं. Then possibly we Hmm. can start with the mentorship that I'll talk to you about कि वो कैसे कर सकते हैं हम. Oh, The first thing is that see as you also wrote in the message that and also hmm. you told me right now that you have been a brilliant student till CA final. Like IPC. above average. Like I'm Yeah. not a topper. Like I didn't get like Hmm. 98% or something. But yeah, Okay. pretty good. Good student. All right. Yeah. तो क्या होता है ना जब हम लोग कॉन्स्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं वी डोंट हैव अ हैबिट टू डील विद फेलियर सो द फर्स्ट टाइम इट हिट्स अस देन वी आर टेकन अबैक कि यार ये क्या हो गया दिस इज समथिंग दैट आई हैड Hmm. नॉट एक्सपेक्टेड राइट जब भी आप पहली Hmm. बार व्हेन योर ग्रैंड मॉम पास्ड अवे तभी आपने Hmm. एग्जाम पॉसिबली लिखा बट इट डिड नॉट गो वेल इट No, मेक्स it सेंस did. ऑफ I कोर्स didn't study only then. I या was 2 days. I was just.
राइट। सो जब वो फेलियर होता है, फिर हम किसी रीजन से वापस से नहीं दे पाते हैं एग्जाम, हाँ और हाँ फिर उसके बाद में जब हमारा यू नो आवर माइंड इज नॉट वर्किंग विद अस और फॉर हम्म अस, तो फिर हम हम्म कॉन्स्टेंटली एक ऐसे फेज में चले जाते हैं जिसमें वी ट्राई टू अवॉइड कॉन्टैक्ट, वी ट्राई टू अवॉइड डीलिंग विद स्टफ, एंड वी फील लाइक रनिंग अवे फ्रॉम थिंग्स। ओके। या या जो कि हो रहा है कि आप रूम में बैठे हो एंड यू फील लाइक आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम यू फील लाइक रनिंग अवे, लेट मी गेट आउट। Okay, या so physically you are going out, but you want a mental relaxation, you want a mental runaway from it. या लाइक आई कैन सिट फॉर 3 आवर्स, पढ़ना है तो 3 आवर्स बैठ के पढ़ो, लाइक हम्म। वैसा नहीं हो पा रहा है, नहीं मतलब हो एक पा सेशन 3 आवर्स का आई यूज्ड टू पुट जनरली रहा। बिकॉज तो सबसे पहले हमें उससे डील करना पड़ेगा, वी विल हैव टू एम्ब्रेस द फेलियर। ओके। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा आपको मोटिवेशन देने वाला हूँ, अभी कुछ बातें आपको बताऊंगा, कुछ स्टोरीज सुनाऊंगा, जिससे पॉसिबली यू विल फील मोटिवेटेड, बट दैट विल बी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आई नो दैट, बिकॉज दैट विल बी एन एक्सटर्नल लेयर, जैसे हम पेंट का बाहर से चढ़ा देते हैं तो वो बारिश में उतर जाएगा। तो these are certain points that you will have to repeat, think, or try to live through these points, so that there becomes an internal layer, not external, जिसको कोई हिला ना पाए। ओके। जिससे आप बाहर ना आ पाओ, वहां पे आपको अच्छा लगने लगे। तो क्या होता है ना कि किसी भी हम इंसेक्ट को देखते हैं, तो वो इंसेक्ट आपको अपने, अगर आप अगर चार दीवारों को देखोगे, तो वो इंसेक्ट कहाँ पर दिखाई देगा? द इंसेक्ट विल नॉट बी रोमिंग अराउंड इनसाइड द बिटवीन द फोर वॉल्स, वो किसी ना किसी कोने में बैठा होता है, राइट? उसका रीजन पता है क्या होता है? कि वो वहां पर सिक्योर फील करता है, सेफ फील करता है। एक कॉर्नर में जाके बैठ जाएगा, इट विल फील लाइक कि यहाँ पे मुझे शायद कोई देखे ना या डिस्टर्ब ना करे, तो वो कॉर्नर उसको पसंद आने लगता है। बट देन व्हेन वो इंसेक्ट जैसे ही बीच में आएगा, बज अराउंड करेगा, तो हम लोग ह्यूमन ह्यूमन क्या करते हैं, उसको वापस से या तो बाहर निकाल देता है या मार देता है, कभी कभी कुछ लोग मार देते हैं, या फिर पुश अवे करते हैं और वो वापस से कॉर्नर में जाके सिक्योर फील करता है। ह्यूमन बिहेव्स इन अ वेरी टिपिकल सेम वे। ओके। क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज से डर रहे होते हैं तो हम एक कॉर्नर पकड़ते हैं, और हम लोग किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट को अलाउ नहीं करने देते, कि दैट इज माई सेफ जोन, डोंट कॉन्टैक्ट मी, आई डोंट वांट टू कम इन बिटवीन, लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे। और आई एंड दिस फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी जो आप कर रहे हो, और आपने कॉन्टैक्ट अपने दोस्तों से बंद कर दिया है, हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ भी ना हो, और they are thinking positively for you, और they might feel like motivating you towards it, but अगर वो मोटिवेशन देंगे तो भी आप उनसे दूर भागोगे, क्योंकि आप खुद से इंफीरियर फील कर रहे हो सकता है वो फील करा ना रहे हो, आप खुद ही फील कर रहे हो, राइट? थोड़े टाइम में क्या होता है कि वो कॉर्नर हमें खाने लगता है, उस कॉर्नर से आप निकलने लगते हो, जो आप कर रहे हो ना, कि मुझे वो रूम में नहीं रहना है, आई वांट टू गेट आउट। सो एट वन वन प्लेस जहां पे लोग आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे अवॉइड कर रहे हो, एट द सेम टाइम यू वांट टू गेट आउट, एंड यू वांट टू बी कॉन्टैक्टेड, यू वांट टू स्पीक टू पीपल, विच इज नॉट हैपनिंग। सो इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट इन योर माइंड। हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी है, उसे कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे उससे डील कर सकते हैं, कैसे हटाएं? तो देखो, सबसे पहली बात, द फर्स्ट अटेम्प्ट दैट यू अपीयर्ड फॉर, इट वाज नॉट योर फॉल्ट, ये किसी के भी साथ हो सकता है, राइट? सेकेंड अटेम्प्ट अगेन नॉट योर फॉल्ट, राइट? थर्ड अटेम्प्ट अगेन नॉट योर फॉल्ट, आई टेल यू व्हाई। ओके, थर्ड अटेम्प्ट जो आपने अभी दिया हुआ है, जिसमें आपको लग रहा है कि चांसेस हैं थोड़े थोड़े, अगेन नॉट योर फॉल्ट, आई टेल यू व्हाई। बिकॉज कई बार क्या होता है, जब हम ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके होते हैं, अच्छा, जब आप उन चीजों से गुजर रहे थे, व्हेन यू हैड एन इंजरी, यू वर स्टिल ट्रैप्ड इनसाइड, यू कुडंट हैव गॉन आउट मच, या फिर आप जो चीजें करना चाहते होगे वो नहीं कर पा रहे होगे। पहली बार में तो आप घर में ही बैठे थे, आप पढ़ने की कोशिश ही कर रहे थे, बट देन सडनली समथिंग हैपेंड एंड इट इट डिस्ट्रैक्टेड यू इन सम वे। एंड क्योंकि हम लोग इतने टाइम से अंदर बैठे हैं ना, तो एक, वी आर ऑल ह्यूमन, एंड हम लोग सोशल बींग्स होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम सोसाइटी से मिलें जुलें या लोगों से बातचीत करें। व्हेन समथिंग लाइक दिस डजंट हैपन, सो नेचुरली आवर माइंड डाइवर्ट्स, और हमारा ब्रेन जो होता है, हमारा ब्रेन नहीं, हमारा माइंड जो होता है, वो आराम करने के लिए ही बना होता है। ओके।
वो हमारा सपोर्ट करने के लिए नहीं बना है। हमारा जो माइंड है उसे हमें वर्क कराना पड़ेगा, तो उसे कंट्रोल में लेके आना Yeah. पड़ेगा। कंट्रोल में लाने के लिए कुछ चीजें होती है, माइंड ट्रेनिंग्स होती है अलग अलग तरह की। का एक वीडियो मैं देख रहा था एंड ही स्पोक अ लाइन दैट व्हेन आई टेल माय ब्रेन, व्हेन आई टेल माय माइंड टू गो समवेयर, इट नीड्स टू गो। Yeah. Okay, so there's this rule called 5 second rule. Now, this is a very small example, but these are certain ways in which your mind will answer to you or listen to you. Okay, so when you feel like that, I want to sit and study for let's say 3 hours, and your mind tells you, no, let's get out, no, I don't want to sit, I don't want to Yeah. work, let's get out. Count till five. 1, 2, 3, 4, 5. I will get out only after 3 hours. Sit till 3 hours. Okay, you are the boss. So you have to start acting like a boss. You don't have to listen to it because it will throw tantrums at you and it will always tell you, आपको हमेशा यही बोलेगा कि यार आराम करते हैं ना, चिल करते हैं ना, नेटफ्लिक्स देखते हैं ना, मुझे नहीं पढ़ना है, हाँ, हाँ. बाहर जाते हैं, लोगों But से then बात करते हैं। रात को guilt आता है when I'm like sleeping. I'm like हाँ, shit, I didn't study. या And then I lay awake thinking that I didn't study and worrying about that. करेक्ट। It's become a cycle. Right? सो ये आपको हर दिन आप जब इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि रात में ही नहीं, जब आप एंजॉय कर रहे होगे ना, आपको साथ साथ में गिल्ट आएगा। This happens with me because I like to work and there are certain days when I don't feel like working. Okay, my mind will tell me, यार please आराम करते हैं, और मैं आराम करूंगा उसकी सुन के because I'm still trying to develop कि मैं उस पर कंट्रोल कर पाऊँ। I'm still trying, I'm still working on it. But there are certain days when I don't feel like working. तो जब मैं बिल्कुल काम करने के मन में नहीं होता हूँ, मूड में नहीं होता हूँ, देर इज अनदर पार्ट ऑफ माई माइंड टेलिंग मी, यार तू काम नहीं कर रहा है, तो वो गिल्ट फीलिंग साथ साथ में आ रही है। आई एम वॉचिंग समथिंग एंड गिल्ट फीलिंग इज ऑल्सो कमिंग, सो मैं उसे परेशान होके देख रहा हूँ, मैं उदास होके देख रहा हूँ। नाउ दिस इज अ ट्रैप। ये ट्रैप कैसे? इट विल होल्ड यू देयर, इट विल नॉट लेट यू गेट आउट अनटिल अनलेस यू डिसाइड टू गेट आउट। तो सबसे पहले अपने माइंड पे कंट्रोल हमें करना है। कंट्रोल करने के लिए दिस इज द 5 सेकंड रूल। ठीक है, ये 5 सेकंड रूल आप किसी भी चीज में अप्लाई करोगे, जितने टाइम आप जैसे जैसे अप्लाई करते रहोगे वैसे वैसे शायद वो और स्ट्रांग होते जाएगा आपके लिए। सो कंसिडर योर माइंड एज अ चैलेंजर। जब हम चैलेंज ले लेते हैं तो फिर हम जीतने की कोशिश करते हैं। एज एन अपोनेंट ले लो और आप जीतने की कोशिश करो। इफ इट टेल्स यू टू स्टॉप, डोंट स्टॉप। Okay, if it tells you to sit down, don't sit. If it tells you to watch something, don't watch. If it tells you to watch a motivational video, don't watch, because what, you have to study, you know the right things, you just have to plan it। वो हम वो उसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो ये जो प्लानिंग होगी, उस प्लान को स्टिक करना है, बट वो स्टिक कौन नहीं करने देगा? हमारा माइंड, और हमें उसे कंट्रोल में लेके आना है। नाउ Like I have made my whole plan on an Excel sheet. Like day wise, I've made it. If I clear group 2, if I don't clear group 2, but that implementation part में मुझे बहुत like I'm suffering a lot. What you're saying, right, like planning wise, I think I'm pretty good, but with respect to implementation. सो इसका भी एक ट्रिक है। क्या होता है कि एकदम से जैसे इफ आई डोंट वर्क आउट एवरी डे एंड एक दिन मैं डिसाइड करूंगा कि लेट्स वॉक 5 किलोमीटर्स और 6 किलोमीटर्स, दिस विल नॉट हैपन। इट जस्ट कैन नॉट हैपन। ओके, फिजिकली मे बी इट माइट, बट मेंटली इट विल नॉट हैपन। इफ आई डिसाइड कि कल मेरे को 6 किलोमीटर चलना है, मेरा माइंड नींद में से मुझे उठने ही नहीं देगा। वो बोलेगा यार रेस्ट करते हैं ना, इतने टाइम से नहीं किया तो कल करेंगे, एंड दैट कल 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 विल कीप हैपनिंग। तो there is a trick to it, and what is the trick? This is for everybody, very important trick, and I follow it very seriously. This is Kaizen costing. Okay, you know Kaizen costing? Continuous improvement. Continuous improvement. Okay, so if you are doing nothing, plan for 1 kilometer or half a kilometer, and then constantly increase it until you reach a point where you think that this is the level, I don't want to go above it, even if it is possible, I don't want to. तो क्या होता है कि हम धीरे धीरे क्लाइम कर पाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट वॉक एट ऑल, ओके, आई डिड नॉट वर्क आउट एट ऑल, एंड then at some point of time I seriously got concerned about my health. Okay, so I started working out and it did not happen well in the initial days, but I kept on going and kept on increasing it. I was like there was a point where I was at one day I walked 12 kilometers, okay, and the next day I thought that what if I am not able to walk 12 kilometers again?
So then I made a plan. I told my mind that, listen, dude, you have to just up it by 100 meters. Just 100 meters more. Okay. So reach till 12, and this 12 will give you motivation. कल किया था ना, चलो आज भी करते हैं. And then it will tell you कि चलो हो गया कल का match. But no, 100 meters more. Okay, this 100 meters more will convert into 200 meters more the next day, and this will keep on increasing. तो ये क्या होता है कि जैसे I have a few students in this mentorship program, and क्या होता है ना कि एक दिन ऐसे अचानक से वो दिन आता है जब हमें काम करने का मन नहीं करता, पढ़ाई करने का मन नहीं करता, या फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मैंने प्लान किया 13 घंटे का पर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 6 घंटा 7 घंटा. हाउ टू गेट बैक टू 13 आवर्स? अगर आप नहीं कर पा रहे हो राइट अवे नेक्स्ट डे पे, आप 13 आवर्स नहीं कर पा रहे हो, और ये कांस्टेंट प्रोसेस चल रहा है 3-4 दिन का कि मैं 7-7 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ और ना मेरा उसमें फोकस है क्योंकि मैं कम कर रहा हूँ, और साथ में मैं परेशान भी हो रहा हूँ, गिल्ट भी फील कर रहा हूँ, तो गिल्ट फील करना बंद करो. 7 आवर्स को 8 आवर्स पे लेके जाओ, 8 आवर्स को 9 आवर्स पे लेके जाओ, एंड यू विल रीच 13 आवर्स. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 5 days इन थिंकिंग कि यार मैं 7 घंटा ही क्यों पढ़ रहा हूँ, वो 7 से 13 पे ले जा सकते हैं ना वो 5 दिन के अंदर. दैट मेक्स मोर सेंस. So this is something that will help you to keep on improving and increasing, और फिर वो गिल्ट फीलिंग भी चले जाएगा क्योंकि कल से बेटर कर रहे हो आप, है ना. सो दो कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल है लाइफ में अप्लाई करने के. एक है काइजन कॉस्टिंग कि इंक्रीज करते जाओ, एंड ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट एंड इंक्रीमेंट करना है. एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है बियॉन्ड बजटिंग. बियॉन्ड बजटिंग बोलता है कि तुम रिजिड प्लान मत बनाओ, फ्लेक्सिबल प्लान बनाओ, राइट. तो तुम एक प्लान डिसाइड करके कि मुझे 13 आवर्स पढ़ना है, अगर उससे उस टारगेट से ही बार बार कंपेयर करोगे कि 13 आवर्स नहीं हुआ, तो 13 आवर्स अगर नहीं हुआ तो तुम परेशान होते रहोगे कि 12 घंटा ही हुआ, 11 घंटा ही हुआ. बट वहीं पे अगर तुम्हारा 7 घंटे से कंपेयर करते हो कि पिछले दिन से ज्यादा करना है, आज अगर तुमने पिछले दिन 11 घंटे भी पढ़ा है और आज तुम 11 घंटे 15 मिनट पढ़ रहे हो, तो खुद के लिए सेलिब्रेट करो ना, बिकॉज यू स्टडीड 15 minutes मोर, एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू 15 minutes मोर द नेक्स्ट डे. सो दैट वे कीप ऑन इंक्रीजिंग, एंड आप अपने पिछले परफॉर्मेंस से खुद को कंपेयर करें.